welcome to Ref Sports. This is Nohar Chaudhary, and right now we are standing here at the DYMA ground here in Dakshineshwar, Kolkata. The fifth day of Empowerment Cup 2025 just got over, and as always, we got to see some really interesting clashes. But what was really different today, what I saw was completely distinct from the rest of the days, was a lot of aggression, a lot of tension, a lot of tensed moments in the games where there was a lot of banter, there was a lot of disagreements with the referee and the coach and the players, which is a clear indication of the fact that the finals are approaching. If I talk about the first game was between UKSC Kolkata and a team from Sambalpur, Orissa. And at the first instance, I thought that they were giving sort of an equal competition. Sambalpur also played really well, but then ultimately UKSC pulled the reins, and yes, they scored 4 goals, and Sambalpur was ultimately ended up being on the losing side. But I would also like to mention the fact that I saw a same side goal today, which actually indicates, it actually tells you what the pressure of a big match does to you. So that's what I saw in the first game. All in all, a very wonderful game to witness. The second game was between All Adivasi Shyamnagar Club and JSSPS from Jharkhand. They had come all the way from Ranchi, Jharkhand, and oh my God, I have to mention how amazing they were on the field. The match was completely dominated by them, one-sided to say the least, and they scored at least, I think they scored 6 goals, and I mean it was completely dominated by them. Their attacking, their defense, their tackles was all were absolutely spot on. Also, if I have to talk about the overall vibe of the game, today I would like to mention about this specific makeshift temporary structure that has been built just adjacent to the field, where, there are some local boys and local kids. They come every morning, they sit there, they watch the game, they talk amongst themselves, they discuss the game. In short, I mean, they're getting the best view of the ground possible. So they're sitting there right from the first game, they are sitting there till the second game gets over. And also I saw some really, a lot of families had come in today. I saw some mothers coming in with their children. I would also like to mention how there are some eminent football personalities and ex-players coming in every single day. And yes, they are interacting with the players. They are, their presence is acting as a source of motivation for the players. So, I mean, today was one of the quarterfinals. The semi-final is on the 28th, and as always, like I just mentioned, 2 teams have already secured a spot at the semi-finals. Number 1 being UKSC from Kolkata, and number 2 being JSSPS from Jharkhand. Well, we are awaiting another interesting clash tomorrow before the semi-finals can take place on the 28th and the finals can take place on the 30th. I would like to conclude by saying that, if possible, please come here, watch the games. There's plenty of audience surrounding the field every single day. Come here, be a part of the experience, motivate them, just be there, watch the games. And if that's not possible, then log into Ref Sports platform every single day, Ref Sports Bangla, Ref Sports. Oh, that was a ball. Anyway, so log into Ref Sports platforms. You can find the updates from every single day. We are also talking to various personalities. We are also talking to the player of the matches. So any update that you require, stay tuned to Ref Sports. So we have Neetu Linda here with us today, and she has represented UKSC Kolkata, and it's needless to say that she has been selected as the player of the match for today's first game. So हम आपके साथ थोड़ा बात कर लेंगे. आप मेरे को बताइए कि आप कहाँ से हो? मैं झारखंड
झारखंड। अच्छा, घर पे सब फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए, किसका सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा है इस जर्नी में? हाँ, फैमिली सपोर्ट तो पूरा रहा मेरा। घर में मम्मी पापा भैया सब ने सपोर्ट किया बहुत, तभी मैं इतना दूर पहुँची हूँ। आज मैच में किसी भी पॉइंट पे ऐसा लगा था कि मैच शायद हाथ के बाहर चली जा रही है? हाँ हाँ, तब कैसे अपने आप को अपने काम रखा, कैसे माइंडसेट कैसा था तब? हाँ, एक गोल मारा, फिर वो लोग ने भी वापस रिटर्न मारा, तो थोड़ा तो लगा कि क्या होगा अब, लेकिन उस टाइम और जोश आया खुद में कि गोल मारना है। अगर गोल मारेगा तो मेरा टीम विनर होगा तो अच्छा है। अगर मुझे ऐसे लगता है अगर मेरा टीम हारता है तो मुझे और जोश आता है, मैं नर्वस नहीं होती हूँ। वाह, दैट्स अ लवली मैसेज। ऑल्सो मैंने देखा है कि फर्स्ट हाफ के बाद जब आप लोग वहाँ पे बैठे थे, बहुत डिस्कशन कर रहे थे, बहुत एवरीवन वाज वेरी हाइपर। तो उस सिचुएशन में क्या डिस्कशन कर रहे थे आप लोग, और कोच ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया था आपको स्पेसिफिकली? हाँ, कोच ने सबको, मेरे को भी स्पेशली बोला कि पोजीशन लेके खेलो, पास लेके खेलो। अगर इंडिविजुअल बॉल लेके जाएगा तो नहीं होगा, पास खेलेगा टीममेट के साथ तो अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ स्कोर भी कर सकते हो, और स्पेस मिलेगा तो गोल क्रिएट भी कर सकते हो, बोला। नाइस। आप मुझे बताइए कि आप इससे पहले कहाँ खेली हो? मैं अंडर 17 वर्ल्ड कप। अच्छा, इंडिया रिप्रेजेंट किया है आपने? हाँ, 2022 में जो वर्ल्ड कप हुआ फीफा वर्ल्ड कप, उसमें मैं रिप्रेजेंट की, और अंडर 19 साफ चैम्पियनशिप, उसमें भी मैं कैप्टन रही और कैप्टन थी। हाँ, और चैम्पियन भी हुई, और अंडर 19 AFC कप के लिए भी गई थी क्वालिफायर राउंड में, तो आ गई। और लवली। और फ्यूचर प्लान्स क्या है आपका, कहाँ देखना चाहोगी अपने आप को? बस मैं फुटबॉल और अच्छा से खेलूँ और अपने मतलब लाइफ में सक्सेस मिले कोई। वाह, लवली, थैंक यू। थैंक यू मैम। So we have coach Somnath Singh here with us today, and he is the coach of JSSPS Jharkhand, and the team has played beautifully today and has secured a spot in the semi-finals. So we will talk to him in, a little bit. So sir, आप बताइए कि आप कब से कोचिंग कर रहे हैं और इस टीम के साथ कब से एक्चुअली मैं 2019 में लॉकडाउन के बाद, जब फर्स्ट लॉकडाउन खुला उसके बाद उस टाइम में ज्वाइन किया। 5 इयर्स हो गया मेरा, और ये JSSPS से आपका खेलगांव में, और ये जो एकेडमी है ये आपका CCL और झारखंड सरकार ने मिलकर बनाया। इन लोगों का कॉन्सेप्ट था जो पिछड़ा हुआ जो बच्चा लोग है उन लोग को आगे लेके आना स्पोर्ट्स का माध्यम में। हम इंट्रोड्यूस करेंगे मेरा JSSPS का, हम लोग जो इंट्रोड्यूस करेंगे JSSPS का। JSSPS में टोटल 10 डिसिप्लिन है। फुटबॉल, आपका एथलेटिक्स, आर्चरी, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, उसके बाद ताइक्वांडो, कुश्ती। और JSSPS में टोटल जब स्टार्टिंग हुआ था इन लोगों का तब उम्र था तो 2016 में स्टार्ट हुआ था। एक MU होता CCL और झारखंड सरकार का, उसमें टोटल 500 बच्चा, गर्ल्स और बॉयज़ मिला के 500 बच्चा लेके आया था। सबसे इस एकेडमी में काम करके सबसे जो मेरा टारगेट था, क्योंकि ये बच्चे लोग पैसे भी कोई प्लेयर नहीं था, इन लोगों को मेडिकल एक फिजिकल टेस्ट लेके इन लोगों को लेके आया था। इन लोगों का उम्र था 12 साल, 2016 में लेके आया था।
16 का लास्ट और 17 में। उसके बाद इन लोगों को जब ये लोग आया था तब इन लोगों को पता ही नहीं था कि जब कोई फुटबॉलर बनेगा, कोई बॉक्सर बनेगा, कोई आपका स्विमर बनेगा, उसके बाद कोई आपका एथलेटर बनेगा, किसी को पता नहीं था। लेकिन पुराना जो कोचेस है जो ग्रास रूट लेवल बेस्ट किया है, उसके बाद वो लोग छोड़ा जो एकलव्य जो था, वो एकलव्य ने पहले फुटबॉल टीम को तैयार किया ग्रास रूट लेवल में। उसके बाद सारे लोग डिफरेंट काम में चले। उसके बाद मेरे हाथ में जिम्मेदारी आया और अभी हम लोग का GSSPS में मेरा फुटबॉल डिसिप्लिन में हम लोग का 8 लड़की एक साथ गया था इंडिया कैंप में। उसके बाद वहाँ से 4 अंडर 17, अभी फ़िलहाल बबीता और निसीमा अंडर 20 टीम में है। और हम लोग का पूरा झारखंड में बॉक्सिंग में हम लोग का एकेडमी में जो एकेडमी है उसमें बॉक्सिंग में आपका अमित शाह जो जूनियर एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मारा है, बाबूलाल हासदा हम लोग का एकेडमी का। ये हम लोग का पूरा एक फैमिली है। साइकिलिंग में है अमित साइकिलिंग में एक लड़की है और एक मैं नाम याद नहीं आ रहा है। तो टोटल हम लोग का एकेडमी में 10 डिसिप्लिन है। अभी 2 डिसिप्लिन और ज्वाइंट हुआ है, लॉन्ग टेनिस और ऊसू। उसमें टोटल हम लोग का टोटल एकेडमी में फुटबॉल सब मिला के टोटल 9 इंटरनेशनल मेडलिस्ट है। और हम लोग का सबसे बड़ा चीज़ है झारखंड में कुश्ती में चंचला कुमारी पहला इंटरनेशनल प्लेयर था। और हम भी चाहेंगे जो आप जैसे चैनल इस जगह को देखे, थोड़ा सा सबके सामने रखे, जो हर स्टेट का गवर्नमेंट ऐसे अगर एक प्रोग्राम ऐसे अगर इनिशिएटिव लेके चलाए तो बहुत स्पोर्ट्स के लिए जो पिछड़ा हुआ बच्चे लोग हैं उन लोग के लिए बहुत बेटर है। आपने जो बोला उसको लेके मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आपने अभी बोला कि ये लोग इतने सारे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, डिफरेंट लेवल्स में खेले हुए हैं, इंडिया भी रिप्रेजेंट किए हुए हैं, तो वो और ये कैसे बैलेंस कैसे करते हैं, कैसे आपका इंस्ट्रक्शन क्या रहता है? देखिए ये लोग डिफरेंट स्पोर्ट्स में नहीं, ओके, अलग डिफरेंट कोच। हर जैसे बॉक्सिंग का कोच हम लोग का सबसे बड़ा कोच है मोहंती सर जो द्रोणाचार्य है, उनका बॉक्सिंग का है, उनका 2 बच्ची आपका तो आपने जो बोला उसको लेके मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आपने अभी बोला कि ये लोग बहुत सारे लेवल्स में खेल चुके हैं, इंडिया रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो वो और ये कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे आपका इंस्ट्रक्शन क्या रहता है? मेरा सबसे पहला इंस्ट्रक्शन मेरा ये कि मतलब जैसे बैलेंस का मतलब कैसे बैलेंस वो तो उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मेरा बच्चे लोग को एक ही चीज़ सिखाया हूँ। झारखंड में एक चीज़ था, कोई बच्चा अगर खेलेगा उसको नौकरी के पीछे भागना है, लेकिन हम लोग प्रोफेशनलिज्म इन लोग के अंदर लाया है। बहुत कष्ट लगा मेरे को, 3 साल लगा इन लोग को समझाते हुए, लेकिन थोड़ा बहुत समझाया हूँ, 20% 30% समझा है। लेकिन अभी भी ये लोग स्पोर्ट्स सिर्फ खेलने आता है, सिर्फ नौकरी के लिए यही कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। लेकिन अभी मॉडर्न फुटबॉल में प्रोफेशनलिज्म AIFF ने लास्ट 2016 से कोशिश कर रहा है, तो हम छोटा सा कोशिश किए बच्चे लोगों को। मेरा टोटल 27 बच्ची है और अभी फ़िलहाल में 12 लड़का है, तो इन लोगों को एक ही कोशिश किया हूँ जो बेटा प्रोफेशनल में आओ। अभी ऑल AIFF ने इतना अच्छा फैसिलिटी दिया है गर्ल्स के लिए, IWL1 IWL2 अगर कोई बच्चा चाहेगा उसको नौकरी अगर प्रोफेशनलिज्म करेगा तो बहुत बेटर है। और हम हमेशा कोशिश करते हैं इन लोगों को प्रोफेशनल में रहने के लिए, नौकरी के पीछे मत भागो, नौकरी आपके पीछे भागेगा, यही कोशिश करता हूँ हमेशा समझाने की। मैं थोड़ा इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगी, कहाँ से है, घर से सपोर्ट मिलता है या नहीं इनको? सर मैम हम ये बात बोलेंगे, जब ये लोग आया था इन लोग का उम्र था 12 साल, किसी का 12, किसी का डेट ऑफ बर्थ हम मेरा गर्ल्स में एक ही लड़की 2006 है और आपका बाकी सब 2008 और 2007 है। और इन लोग का फैमिली बैकग्राउंड आप बोल के तो आपको समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है उन लोगों को स्पोर्ट्स के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। और इन लोग का फैमिली बैकग्राउंड इतना मतलब नहीं बोलना चाहते, हम समझना चाहिए, बहुत पिछड़ा हुआ है। और अभी फ़िलहाल अपना बच्ची लोग अपना मम्मी पापा को समझाते हैं, आगे ले जाने के लिए कोशिश करते हैं। और आप लोगों को और एक अचीवमेंट बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर सुब्रोतो 2024 जो सुब्रोतो कप हुआ था दिल्ली में, उसमें मेरा अगेंस्ट में था बांग्लादेश, जहाँ पे हम लोग 4-1 से जीते। 1 गोल से डाउन चल रहा था, उसके बाद 4-1 से हम लोग जीते। ये हम लोग का एक बड़ा अचीवमेंट था लास्ट ईयर में।
आपको यहाँ पे आपकी टीम के साथ आप आए हैं, झारखंड से आए हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका और आपको क्या क्या लगता है, मतलब ऐसे टूर्नामेंट्स कैसे हेल्प करेंगे विमेंस फुटबॉल को आगे आने के लिए? मैम पहली बार देखा हूँ गर्ल्स सेक्टर में ऑल इंडिया लेवल में नेशनल लेवल में एक टूर्नामेंट, और कलकत्ता में अपने आप को प्रचार करने के लिए बेस्ट जगह है। सर लोग ने दिए है वो ऑप्शन दिया है, इतना अच्छा ग्राउंड है, इतना अच्छा इन्वायरमेंट है, और मैं यही दमदम का ही लड़का हूँ। तो मैंने रियलाइज लास्ट 5 इयर्स में बाहर, उससे पहले कलकत्ता ग्राउंड में काम किया हूँ, लेकिन आज तक मैं इन बंगाल में इतना अच्छा लेवल का टूर्नामेंट नहीं देखा, ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ। इसलिए मेरा पहले ही टारगेट था जो कि कुछ भी करके ये टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन करना, अच्छा रिजल्ट लेके जाना, क्योंकि झारखंड में खेलगांव में किसी को पता ही नहीं है इस टीम का बारे में, और अपना इस टूर्नामेंट के माध्यम से गुड गेम खेल के अपना टीम का प्रचार करना। थैंक यू सो मच।